Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD in Special Education and working as Assistant Professor of Special Education at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Mentally Challenged Children, and this course is from Masters of Special Education with an area of specialization Mentally Challenged. The course code is SPED 4133 and this is a 3 credit hours course. The title for today's lesson is Simulation as a Teaching Method. So first of all, we will discuss that what is simulation. The word simulated means to imitate exactly. Interest is aroused in the pupil through role playing while teaching. This skill is used by teachers and pupils in the classroom by playing some role without any preliminary training. So it can be safely concluded that simulation is a form of role playing wherein pupil teachers display this skill spontaneously. So in shorter terms, simulation can be called as role playing by the pupil teachers, like the students are playing the role of teachers in the classroom, and then they are performing different tasks in front of the class and the teachers, and in this way this is called as simulation. In the simulated teaching method, the pupils are only acquainted with the conditions. Therefore, they discuss and go ahead with the subject matter. Groups of 4 or 5 pupils are made in such a method. So only guidance is provided by the teachers, guidance about the provided conditions, and students follow those conditions and the guidance of the teachers, and then play according to the given conditions. यानी जो भी एक सिनेरियो स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जाता है, उस सारी सिचुएशन को स्टूडेंट्स खुद से एनालाइज करते हैं एक दूसरे के साथ। जब वो ग्रुप ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट्स की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं क्लास में और असाइन किया जाते हैं उनको रोल्स, तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को जिसके ऊपर उन्होंने एक्ट करना होता है, कि उसे कैसे प्रोसीड करना है, उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, और इस सारी डिस्कशन के बाद बच्चे जो हैं वो काम करते हैं सिमुलेशन में। Simulated teaching is the technique of learning and training. So this is not only used in the process of learning, but it is also a part of training, which develops the ability in an individual regarding problem solving behavior. It has been defined as a role playing strongly in which learners perform the role of in an artificially created environment. Again, we are repeating that this is basically a role playing for the learners, and in which the students are performing different characters and and performing in different situations in the classroom, and all those situations are artificially created. और बच्चे को जैसे एक स्टेज प्रोवाइड कर देता है टीचर कि इस तरह से ये सिचुएशन है और इसमें आपने कैसे परफॉर्म करना है, आप इसको करके दिखाएं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं। The general structure and flow of the simulations. इंट्रोडक्टरी सेक्शन सबसे पहले होता है जिसमें टीचर जो है वो प्रेजेंट करता है सिचुएशन को, या आप कह लें कि प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द क्लास और इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप ऑफ दैट क्लास, और उसके सामने जो प्रॉब्लम है उसकी डिटेल्स को रखता है। उसके बाद है प्रेजेंट सिनेरियो, दिस इज़ आल्सो डन बाय द टीचर, और वो सारे के सारे जो भी उसमें एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं वो तो स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट जो सिचुएशन प्रोवाइडेड होती है उसको डिटेल से एक्सप्लेन करता है इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज़ एक्शन रिक्वायर्ड, स्टूडेंट्स उसमें से फिर फाइंड आउट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और जो इंट्रोडक्शन उनको प्रोवाइड किया गया है उसमें जो वो कौन कौन से एक्शंस हैं जिनको वो करेंगे परफॉर्म, और उसके बाद जब वो बच्चे डिसीजन कर लेते हैं कि हमने क्या परफॉर्म करना है और कितना परफॉर्म करना है किस तरह से, सो उसके बाद स्टूडेंट्स एक्ट
यानी इसमें प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है, स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं जो कुछ उन्होंने डिसाइड किया होता है उसको। और उसके बाद सिस्टम अपडेट्स, यानी उसमें ये होता है कि अगर जब बच्चा परफॉर्मेंस दे लेता है तो उसके बाद टीचर की तरफ से एक उसका इनपुट आता है टीचर की तरफ से, और उसकी बेस पर हो सकता है कि वो जो टीचर का आ रहा है स्टूडेंट्स के आउटपुट पर टीचर की तरफ से जो भी रिकमेंडेशंस आ रही हैं उसकी बेस पर जो सिनेरियो उसने पहले बताया था टीचर ने उसमें चेंजेस करनी पड़े, दोबारा से हो सकता है कि गाइडेंस देनी पड़े। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिस्टम अपडेट्स के बाद प्रेजेंट सिनेरियो की तरफ भी एरो जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ अगर टीचर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो दोबारा से सिचुएशन को प्रेजेंट करता है और उसके अकॉर्डिंगली दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से बच्चे जो हैं वो इसमें एक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर उनकी जो फर्स्ट टाइम या जिस वक्त भी उनकी परफॉर्मेंस एग्जैक्टली हो जाती है, अप टू द मार्क हो जाती है, उसके बाद इस सिचुएशन में और इस जो टीचिंग मेथड है इसकी क्लोजिंग होती है, और क्लोजिंग भी जो है वो इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स टीचर करता है, क्योंकि वो उसको फिर कंक्लूड करता है कि जो कुछ भी प्रेजेंट किया गया है उसमें कुछ चीज़ें अगर उस टीचर की तरफ से ऐड होनी है तो वो इस लास्ट स्टेज पर टीचर कर सकता है। So these were the basic steps of simulation teaching method. In almost every instance, a simulation also simplifies reality by omitting or changing details. In this simplified world, the student solves problems, learns procedures, comes to understand the characteristics of phenomena and how to control them, or learns what actions to take in different situations. क्योंकि सिमुलेशन जो है वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस की, यानी बच्चे उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो उसमें बेसिकली सिमुलेशन की जो एक्टिविटी होती है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी कि वो सिंप्लीफाई कर रही होती है आपकी रियलिटी को, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस जब क्लास उसको देखती है तो उनके लिए काफ़ी हद तक सिचुएशन काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है बाय ओमिटिंग और चेंजिंग डिटेल्स। ठीक है, तो जो भी उनको सिचुएशन प्रोवाइड की गई होती है उस ग्रुप को, उसमें काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं वो ओमिट, यानी कुछ चीज़ें ओमिट की जा सकती हैं, कुछ डिटेल्स जो हैं उनको चेंज किया जा सकता है, कुछ न्यू चेंजेस करके उस नए ग्रुप को किसी और ग्रुप को असाइन किया जा सकता है रोल और सिचुएशन। सो इन द सिंप्लीफाइड वर्ल्ड द स्टूडेंट सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, लर्न प्रोसीजर्स, कम टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोमिना, यानी उसको पूरा जब वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीख रहे होते हैं, वो पूरा प्रोसीजर उस एक्टिविटी के अंदर जितना वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उस सारे प्रोसीजर्स के बारे में भी सीख रहे होते हैं, और उसके अलावा वो जो भी फिनोमिना टेक प्लेस हो रहा होता है उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, इसका पर्पस क्या है, इससे हम लर्न क्या कर रहे हैं, तो इस सारे फिनोमिना को वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और जो भी सिचुएशन उनको प्रोवाइड की गई होती है उसके बारे में वो कंट्रोल सीखते हैं, और इसके अलावा वो देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस जब चेंज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एक्शंस को कैसे डिसाइड करना होता है, और इन सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स लर्न करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टीचिंग मेथड है जो कि वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों को लर्न करवाता है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो कंट्रोल है वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और बच्चा जो है वो काफ़ी डिटेल से स्टूडेंट्स इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि ये जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं वो किस तरह का है, और उससे बेसिकली व्हाट दे आर लर्निंग, तो मेटाकॉग्निशन की तरफ स्टूडेंट्स जाते हैं कि जो कुछ वो कर रहे होते हैं उसको वो सीख रहे होते हैं और समझ कर सीख रहे होते हैं। The purpose is to help the student build a useful mental model of part of the world and to provide an opportunity to test it safely and efficiently. So जो सिमुलेशन की एक्टिविटी होती है वो सिर्फ ये नहीं होता कि प्रैक्टिकली बच्चे ने काम परफॉर्म कर दिया है और उसने लर्न कर लिया है, बेसिकली जो उसकी अंडरलाइंग अजम्पशन है दैट इज़ चेंज इन द मेंटल मॉडल, क्योंकि प्रैक्टिकली समटाइम्स बच्चों के जहन में उसकी फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी एक कॉन्सेप्ट बच्चों को टीच किया है, लाइक अगर आप प्राइमरी ग्रेड्स की बात करते हैं, अर्ली प्राइमरी ग्रेड्स की बात करते हैं, और उसमें एडिशंस के सम्स जो हैं वो आपने बच्चों
बच्चों को सिखाए हैं। अब उस एडिशन के सम्स के लिए डेफिनेटली जब उसको बच्चों ने किसी भी और टीचिंग मेथड के थ्रू लर्न किया है तो उसके कुछ मेंटल मॉडल्स और मेंटल स्ट्रक्चर्स उसके ब्रेन में डेवलप हो जाते हैं जो जिसकी बेस पर वो कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर रहा होता है। जब उसके बाद उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट सिचुएशंस प्रेजेंट की जाती हैं और बच्चे थ्रू सिमुलेशन उसको परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आ सकती है कि हो सकता है बच्चे के जहन में जब वो उसने पहले एडिशन को लर्न किया था तो कोई जो है वो मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो गई हो, या इवन अगर मिसकॉन्सेप्शंस ना भी हों तो इलेबोरेटेड कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, वो ज़्यादा डिटेल से समझ पाते हैं सिमुलेशन के थ्रू एडिशन के कॉन्सेप्ट को, और इस तरह से उनके जो मेंटल मॉडल होता है उसमें चेंजेस होती रहती हैं। और जब वो एक नया एक कॉन्सेप्ट के अंदर उसके चेंज आता है ब्रेन में तो फिर वो उसके पास जब वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा होता है तो बेसिकली उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक जो उसने नया लर्न किया है उसको टेस्ट कर सके कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है। उसको दोबारा से वो कुछ हर सिचुएशन जैसे जैसे बदलती जाती है सिमुलेशन में वो उसको एनालाइज करता जाता है, न्यू लर्निंग को एनालाइज करते हैं स्टूडेंट्स साथ साथ कि वेदर वी आर लर्निंग राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो उसके पास ये एक टेस्ट अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस को खुद भी इवेलुएट कर रहे होते हैं और उसकी जो अंडरलाइंग लर्निंग होती है उस परफॉर्मेंस के अंदर उसको लर्न कर रहे होते हैं और उसको एनालाइज भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो अपनी लर्निंग को सेफली और एफिशिएंटली अप्लाई कर रहे होते हैं सिमुलेशन की टीचिंग मेथड में। सिमुलेशंस डिफ़र फ्रॉम इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स, क्योंकि इसमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स में ये होता है कि समटाइम्स टीचर्स जो है वो एक्टिंग करवा लेते हैं टीचर से स्टूडेंट्स से, जिसको सिंपली हम रोल प्लेइंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स सिंपल होते हैं, उसमें टीचर जो है वो एक सिचुएशन देता है और उसमें बच्चे परफॉर्म कर देते हैं जस्ट। और सिमुलेशंस में भी यही कुछ होता है, इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। we will discuss that what is the difference between simulations and interactive tutorials. Interactive tutorials में क्या होता है, which help the student learn by providing information and using appropriate question and answer techniques. ठीक है, इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स में बच्चे क्वेश्चन आंसर की टेक्निक को यूज़ करते हुए एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड इन अ सिमुलेशन द स्टूडेंट्स लर्न बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज़, क्योंकि इसमें वो एक्ट करते हैं, रोल प्ले करते हैं, और जो सिर्फ ज़बानी कलामी रोल प्ले नहीं कर रहे होते, फिज़िकली रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स होते हैं उसमें वर्चुअली रोल प्लेइंग हो रही होती है लेकिन फ़िज़िकली रोल प्लेइंग नहीं हो रही होती। जस्ट बच्चे जो हैं वो ख़ुद को इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन के अंदर और उससे रिलेटेड जो है वो आंसर क्वेश्चंस करते हैं। ऑन द अदर साइड सिमुलेशन में जो है वो प्रैक्टिकली लर्न कर रहे होते हैं और अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट और इन अ कॉन्टेक्स्ट दैट इज़ सिमिलर टू द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड में से एग्जांपल्स लेकर उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए सिचुएशंस दी जाती हैं, तो इस वजह से वो एक रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं और उससे लर्न कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स एंड सिमुलेशंस, एंड द मेजर डिफरेंस इज़ मेजर डिफरेंस इज़ ऑफ द फिज़िकल एक्टिविटी, जो कि सिमुलेशंस में फ़िज़िकली परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स में वो वर्चुअली ख़ुद को इमेजिन कर रहे होते हैं इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। Here are some categories of simulations. So first one is physical simulation. A physical object is displayed on the screen, giving the student an opportunity to use it or learn about it. Typical examples are some scientific laboratory equipment to be used in an experiment. So इसमें ये होता है कि अगर आप स्क्रीन की जो यहाँ पर बात की गई है, दैट मीन्स कि किसी न किसी फॉर्म में टीचर ने प्रेजेंट करना होता है कोई ना कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स के सामने। वो क्लासरूम के अंदर जो है वो लाइव भी किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्यूटर पर कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाई जा सकती है। तो एक सिचुएशन जब टीचर ने क्रिएट करनी होती है क्लासरूम के अंदर, तो अगर वो सिचुएशन टीचर जो है वो फिज़िकली यूज़ कर रहा है
बच्चों के सामने कोई भी उसने सिचुएशन प्रेजेंट की है और वो स्टूडेंट्स उसको देखने के बाद उसके अकॉर्डिंगली फिर परफॉर्म करते हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट की गई है कि जो एक लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट है, लाइक कोई भी आप जो है वो सिलेंडर्स हैं या स्क्रू गाज है, कोई भी एक इक्विपमेंट बच्चों के सामने उसकी पिक्चर शो करते हैं या वो इक्विपमेंट शो करते हैं लाइव क्लास में, या उसकी कोई वीडियो शेयर करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इस तरह से उसमें फिर फर्दर बच्चों के पास ये एक्टिविटी होती है कि उन्होंने उसका यूज़ जो है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज़ उसको एक्सप्लेन करना है थ्रू रोल प्लेइंग। तो इसमें दिस इज़ कॉल्ड एज फिजिकल सिमुलेशंस। Next one is procedural simulations. The purpose of most procedural simulations is to teach a sequence of actions that constitute a procedure. So अगर आपके पास आपने ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट की है जो रिक्वायर करती है कि स्टूडेंट्स उसके लिए रोल प्लेइंग इस तरह से प्लान करें कि उसमें जो प्रॉपर एक सीक्वेंस है वो फॉलो हो रहा है अगर, तो दैट मीन्स कि उस प्रोसीजरल सिमुलेशंस बच्चे जो हैं वो लर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोसीजर और एक्शंस जो वो कर रहे हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में कर रहे हैं, तो इस तरह से उनकी ये स्किल जो है वो इन्हेंस होती है, यानी वो प्रोसीजरल लर्निंग में होते हैं। Next one is situational simulations, and this deals with the attitudes and behaviors of people in different situations rather than with skilled performance. ठीक है, तो यानी परफॉर्मेंस जैसी भी बच्चे दे रहे हों, पुअर है, कुछ एवरेज है, लेकिन यह है कि बेसिकली वो लर्न कर रहे होते हैं एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स के बारे में। सिचुएशनल सिमुलेशंस यूजुअली अलाउ द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज टू अ सिचुएशन और टू प्ले डिफरेंट रोल्स इन इट। ठीक है, तो इस पे बच्चे जो है वो बेसिकली एनालाइज कर रहे होते हैं और वो नई से नई सिचुएशंस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उन डिफरेंट जो अप्रोचेज़ हैं उनको यूज़ करने के साथ साथ वो डिफरेंट रोल प्लेज जो हैं उनको डिसाइड कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज सिचुएशनल सिमुलेशंस। लास्ट वन इज़ प्रोसेस सिमुलेशंस। The student neither participates in the simulations as with situational simulations nor constantly manipulates it as in physical or procedural simulations. ठीक है, तो उन दोनों की तरह इसमें काम नहीं हो रहा होता। Rather, the students selects values of various parameters at the beginning of the simulation and then watches the process occur without intervention. ठीक है, तो वो शुरू में जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस प्रोसेस को किसी भी इंटरवेंशन के बगैर उसको जस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस सिमुलेशन। जब हमने स्टूडेंट्स से क्लासरूम के अंदर परफॉर्म करवाना होता है तो हमें कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपको एग्जांपल दूं कि जब भी आपको क्लासरूम के अंदर कहा जाता है कि भी आपने एक टीचर का रोल एक्ट करना है, किसी लेसन को प्रेजेंट करना है, ख़ास तौर पर जो जितने भी आपके कोर्सेज़ टीचिंग से रिलेटेड हैं, लाइक टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ है, टीचिंग ऑफ साइंस है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, तो इसमें जब भी आपको कोई ऐसा रोल असाइन किया जाता है कि आपने एक टीचर के तौर पर एक्ट करना है, दैट इफ़ यू आर teaching this particular concept to a mentally challenged children or any other disability, विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं या आपको प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि अगर आपकी क्लास में इतने बच्चे जो हैं वो हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं और बाकी बच्चे जो हैं वो इंक्लूसिव की क्लास है, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी सिचुएशन क्लासरूम की है वो आपको आपके सामने प्रेजेंट की जाती है एंड देन यू आर आस्क्ड टू टीच दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर आप एक टीचर का रोल एक्ट करते हैं और चाहे वो आपने ग्रुप में असाइनमेंट बनाई हो या अकेले बनाई हो, तो वहाँ खड़े होकर फिर आप एक टीचर के तौर पर उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और दिस सिमुलेशन जो है वो दैट इज़ द टाइप ऑफ टीचिंग। इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम सिमुलेशन कहते हैं। टीचर ट्रेनिंग के अंदर सिमुलेशन की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। टीचर ट्रेनिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें सिमुलेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं आपके वो सिर्फ एक इमेजिनरी वर्ल्ड या एक इमेजिनरी क्लासरूम के अंदर खड़े होते हैं और वहाँ वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। पीपल्स फॉर द सेम सब्जेक्ट शुड गो फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपकी क्लास के वो स्टूडेंट्स
सिमुलेशन की एक्टिविटी का पार्ट होने चाहिए जिन्होंने उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। लाइक अगर आपकी मैथ की क्लास है तो उसमें तमाम वो बच्चे होने चाहिए जिन्होंने मैथ को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है। कोई इरेलीवेंट स्टूडेंट उस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होना चाहिए। Each pupil teacher should be provided with the opportunity to play the role of teacher, student and an observer। क्योंकि जब हम टीचिंग एक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ये 3 रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और यही मोस्टली प्रेजेंट होते हैं एक टीचिंग एक्टिविटी के अंदर। टीचर खुद है, उसके सामने जो बैठे हुए उसके स्टूडेंट्स हैं, और ऑब्ज़र्वर यानी जो एक खड़े होकर आप उनकी उस जो सिचुएशन वो प्रेजेंट कर रहे हैं और जो एक्ट वो कर रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को खड़ा किया जाता है। सो इन तीनों रोल्स के में जो है वो आपकी क्लास में जब आप असाइन करें तो स्टूडेंट्स को स्विच ऑन करते रहें। हाँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा एक ही टीचर जो है उसको एक ही बच्चा जो है उसको टीचर बना दिया जाए, एक ही जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है उसको सामने एज अ स्टूडेंट क्लास बनाकर बिठा दिया जाए। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा हम इसको इसी तरह से अप्लाई करें। फॉर प्रैक्टिस pupil द टीचर शुड प्रिपेयर माइक्रो लेसन प्लान। यानी जब हम इसको प्रैक्टिकली क्लासरूम के अंदर करवाते हैं, और चाहे वो बच्चा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का नहीं भी है, अगर वो प्राइमरी ग्रेड्स का भी बच्चा है, ठीक है, तो उसको जब आप एक परफॉर्मेंस के लिए टीचर एक्ट दे रहे हैं कि आपने एक एक्टिंग करनी है टीचर की तरह से, तो उसको फिर चाहिए कि वो प्रॉपरली एक लेसन प्लान डिज़ाइन करे, राइट अप करे उसका, या राइट अप नहीं भी करता तो कम से कम उसका जो स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली प्लान करें। एट द एंड ऑफ द सेशन देयर शुड बी ए डिसीजन फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसेस। यानी जो एंड पर है वो एक प्रॉपर कंक्लूजन होनी चाहिए, ताकि विद द हेल्प ऑफ द टीचर, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया है उसमें अगर कोई भी मिस्टेक है, कोई भी मिसकॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है तो टीचर उसको क्लैरिफाई कर दें। तो अगर ये सारी चीज़ें जो प्रिकॉशंस आपको 4 दी गई हैं, ये सारी जो है इनको जहन में रखना पड़ता है जब हम अपनी क्लास की एक्टिविटी के लिए सिमुलेशन को प्लान कर रहे होते हैं। तो इन 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। These are some advantages of simulated teaching. It is for experiencing problem situation। ठीक है, क्योंकि जब एक सिचुएशन आपने बच्चों को दी है जिसके अंदर आकर उन्होंने परफॉर्म करना है, रोल प्ले करना है, तो बेसिकली वो एक प्रॉब्लम सिचुएशन को खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फिज़िकली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। दिस टेक्निक हेल्प्स अस इन एक्वायरिंग सम क्लासरूम मैनर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें प्रैक्टिकल काम हो रहा होता है, तो उसमें क्लासरूम मैनर्स बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं कि हमने ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जो है उसको भी क्लास का डेकोरम जो है उसे कैसे मेंटेन रखना है। द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक एनेबल्स अस टू स्टडी एंड एनालाइज द टीचिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब एक स्टूडेंट टीचर क्लास के सामने खड़े होकर पढ़ाना शुरू करता है तो उसे कम से कम जो टीचिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एनालाइज करने में हेल्प मिलती है और उनको ओवरकम करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि वो फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा होता है। फोर्थ एडवांटेज इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचिंग डेवलपर्स थ्रू सिमुलेटेड टीचिंग। ठीक है, तो जो बच्चे टीचिंग सीख रहे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर क्लास एंड यू आर सपोज टू स्पीक समथिंग। कुछ ना कुछ आपने क्लास के सामने बोलना है, परफॉर्म करना है, तो उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक न्यू लेवल आप एक्वायर कर रहे होते हैं जब आप क्लास के सामने खड़े होकर बोल रहे होते हैं। दिस टेक्निक हेल्प्स इन explaining the behavioral problems in the classroom and contributes to its solutions. So when you are acting as a teacher and you are standing in front of your class, and then you will realize that what are the behavioral problems present in the classroom and how to manage those behavioral problems. Basically तो ये है ना कि जब आप एक टीचर के तौर पर सामने खड़े होते हैं क्लास के, तो आप एक टीचर की तरह सिर्फ ये नहीं कि टीच कर रहे हो, बल्कि आप ओवरऑल पूरी क्लास आपके कंट्रोल में होती है और आपने अकॉर्डिंगली बच्चों को उनको मैनेज करना होता है। अगर वहाँ पर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ स्टूडेंट्स हैं तो उनको प्रॉपरली लुक आफ्टर करना है, उनको गाइड करना है, उनके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना है, उनके बिहेवियर के ऊपर भी साथ साथ काम करना होता है। और एक इससे साइड में एक एडवांटेज ये भी होता है, प्लस एक ये एडवांटेज भी होता है कि स्टूडेंट्स उसमें सेल्फ रियलाइज़ करते हैं कि जब हम सामने बैठे होते हैं एज अ स्टूडेंट्स,
और हमारे टीचर हमें खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं, तो जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं क्लासरूम के अंदर, वो किस तरह से डिट्रैक्ट कर सकते हैं, वो क्या इफ़ेक्ट्स करते हैं क्लासरूम के अंदर, उनको मैनेज करना कितना प्रॉब्लमेटिक होता है टीचर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स सेल्फ रियलाइज़ भी करते हैं। दिस टेक्निक मेक्स अ पर्सन मोर अवेयर ऑफ द रोल। ठीक है, तो टीचर का रोल अगर जब वो प्ले कर रहे होते हैं तो बेसिकली उसको ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है टीचिंग करियर के हवाले से। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, आप जैसे टीचिंग के बहुत से कोर्सेज बड़ी थेरी पढ़ लेते हैं, डिटेल से पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उसको परफॉर्म करते हैं किसी एक टीचिंग मेथड को, लाइक आपने अगर अप्लाई करना हो, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें फिर ये होता है कि जो आपकी थेरी आपने पढ़ी होती है, देन यू आर एबल टू अप्लाई दैट थ्योरेटिकल फाउंडेशंस टू द प्रैक्टिकल सिचुएशन। और इस तरह से जब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाते हैं अपनी थेरी को अपनी प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ दैट इट प्रोवाइड्स दैम विद द रीइंफोर्समेंट टू डेवलप वेरियस टीचिंग स्किल्स। क्योंकि एज अ टीचर जब व्हेन यू आर स्पीकिंग टू द क्लास, तो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और जैसे ही सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है तो काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट जो बच्चों को साथ साथ मिल रही होती है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स खड़े होते हैं वो उनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, क्लास में जो टीचर खड़ा है वो उनको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है, क्लास में जो उनके बाकी पीयर टीचर्स हैं या उनके साथ जो उनके पीयर्स हैं वो उनकी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, और वो जो प्यूपल टीचर होता है वो उनको जो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है बच्चों के रिस्पॉन्सेज को, कि जो कुछ वो पढ़ा रहा है उसमें बच्चों के इनपुट और उनकी डिस्कशन के थ्रू एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो कंटिन्यूसली इस जो एक्टर ग्रुप होता है उनको मिल रही होती है, और वो साथ साथ अपनी जो उसमें अगर कोई खामी होती है तो उसको ओवरकम भी कर लेते हैं, उसको नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। In the last we will discuss some limitations of simulated teaching, and however this is very practical teaching method and very useful in the courses of teaching, and in especially in those courses where the content is somehow complex or difficult to understand। तो जो डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ कोर्सेज़ होते हैं उसमें ये होता है कि टीचर पहले जब एक दफ़ा ख़ुद पढ़ा चुका है या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे चुका है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए बच्चों को सिचुएशंस प्रोवाइड की जा रही हैं और वो प्रैक्टिकली उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह से जो ये एक बड़ा बेनिफिशियल मेथड होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इट्स यूज़ कैन नॉट बी मेड इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द करिकुलम। तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें रोल प्लेइंग जो देना है वो एज अ टीचर जब बच्चों को रोल प्ले करवाना है वो समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे अगर आपने कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है और उसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाने हैं, तो फर्स्ट जो परफॉर्मेंस है वो जब तक बच्चे जो हैं वो उसको ख़ुद से लैब में उन्होंने किया नहीं होगा वो एज अ टीचर उसको उसमें एक्ट नहीं कर सकते। तो लिमिटेशंस होती हैं कि अगर ये सिचुएशंस होंगी तो इमिटेशन होगी, तो इसमें क्योंकि सिमुलेशन का मतलब है इमिटेट करना, ठीक है, तो यानी टीचर के तौर पर एक्ट करना, तो इसको तभी वो फिर प्रॉपरली कर सकेगा। दिस मेथड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर्स विच दे माइट नॉट बी रेडी टू टेक। ठीक है, तो इसमें टीचर्स का रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्होंने ऑब्ज़र्व करना होता है, एनालाइज करना होता है उनकी परफॉर्मेंस को, और एक डिफरेंट टाइप ऑफ रोल जो है वो टीचर को परफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि जनरली टीचर में ने ये करना होता है कि उसने टीच किया है कॉन्सेप्ट, उसको इवैल्यूएट कर दिया या उसको असेसमेंट कर लिया क्लास के अंदर, लेकिन इसमें जो है वो उसको सिचुएशंस को एनालाइज करना पड़ता है, एक बड़ा डिफरेंट वे में बच्चे जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसकी असेसमेंट भी डिफरेंट वे में होती है। द ऑब्जर्वर हु इज़ डूइंग द रोल मे इनकरेक्ट रीडिंग। ठीक है, तो जो जिन बच्चों को आपने ऑब्जर्वर्स के तौर पर बिठाया हुआ है, जो कि उस एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जस्ट और उसको नोट डाउन कर रहे हैं, उसके नोट्स ले रहे हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि अगर आप जो है वो किसी और टास्क में बिज़ी हो गए हैं टीचर्स, और ऑब्जर्वर्स ने आपको रीडिंग्स वगैरह जो लेकर दी हैं बच्चों की, या उस जो भी एक्ट वो कर रहे हैं
उसको एनालाइज करके एक सिचुएशन को आपको पेज के ऊपर करके दिया है, काम कुछ राइट डाउन करके दिया है, तो उसमें मिस्टेक्स और एरर्स के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही उस सिनेरियो को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। बहुत कम होता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं और बच्चे जो हैं वो न्यू कॉन्सेप्ट को न्यू तरह से लर्न कर पा रहे हों, लेकिन जो बच्चों की जो ऑब्जर्वर्स की प्रीवियस लर्निंग होती है वो अफेक्ट करती है उनकी ऑब्जर्वेशन को, जो वो एक न्यू सिचुएशन की कर रहे होते हैं। For beginners, it may be difficult to practice a few teaching skills such as questioning and some other teaching skills. तो टीचिंग जो है वो दैट इज़ नॉट लाइक कि वो आप बोर्ड के सामने खड़े हो जाएं और जो है वो बस टीच करना स्टार्ट कर दें। टीचिंग के अंदर बहुत सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम, बहुत से ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि टीचर ने अप्लाई करने होते हैं। तो प्यूपल टीचर जब टीचर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है तो बहुत सारी जो टीचिंग टेक्निक्स होती हैं उनको प्रैक्टिकली यूज़ करना, उसमें बच्चे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते आपकी क्लास के अगर, तो फिर जो है वो सिमुलेशन जो एक्टिविटी है उसका शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो पाए। तो प्रायरली ये है कि जो टीचिंग के कुछ टेक्निक्स हैं वो बच्चों को आनी चाहिए, उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नो एम्फेसिस इज़ गिवन टू टीचिंग द कंटेंट। ठीक है, तो इसमें सिचुएशंस डिफरेंट बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं टू सम एक्सटेंट, जो कंटेंट के साथ डेफिनेटली रिलेट तो कर ही होती हैं, लेकिन डायरेक्टली कंटेंट टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक नया कॉन्सेप्ट अगर आया है और उसको टीच करना है क्लास के अंदर, तो वो आप सिमुलेशन के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ये होगा कि जो आपका कंटेंट है इसकी वजह से फिर ये होगा, इसके इफ़ेक्ट्स ये होंगे कि जो कंटेंट आपने कवर करवाना है क्लास के अंदर वो थोड़ा पीछे रह जाता है, उसके लिए टाइम नहीं बचता। और इस तरह की एक्टिविटीज़, चूँकि ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसमें फिर ये होता है कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूम करता है काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से फिर जो उनके सारा का सारा जो टाइम होता है वो एक्टिविटीज़ में जा रहा होता है। कंटेंट टीचिंग जो टीचर ने करनी होती है उसके लिए इतना सफिशेंट टाइम बाकी नहीं बचता, तो इस वजह से इसमें फिर इस तरह के इश्यूज आते हैं। सो दीज वर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ द सिमुलेटेड टीचिंग, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।